Very outset, thank Mr. Majid for giving me an honor to talk on behalf of my colleagues and friends who are former cricketers. थोड़ा सा मैं अपने बारे में बात करना चाहूँगा. I'm a very small cricketer. There are many distinguished cricketers sitting by my side. Being the senior most cricketer age-wise, it's my privilege to be talking to the journalist fraternity. My association with cricket has been, particular with JKCA, has been more than 50 years. I have remained associated with this association for around 50 years. I am reminded of the great things that have happened at JKCA. I am reminded of first one-day international match that was played between West Indies and India. What you see now, you see our teams doing well. It has a history. It has a history that we have been trying our level best to compete with the better teams. And जो आज हमारी टीम ने परफॉर्मेंस दी है, इससे पहले भी हमारी टीमों ने परफॉर्मेंस दी थी. We would have been happier. We would have been happier had our team qualified for the semi-finals, and they would have been able to create a history. But as you know, cricket is a game of glorious uncertainties. It will continue to remain so. It's nothing new that teams can falter. I remember last year, Indian team was what you call bundled out by New Zealand at their home. And moreover by the spinners of New Zealand. New Zealand outclassed them but that does not mean that India did not play well. J&K की अपनी history है. We have been participating in Ranji Trophy tournaments for around 50 years, a little more than that. It would have been very, very ideal. I had in fact discussed this with Roof Saab. I was thinking that it will be my honor to share the dice with Roof Saab because he is the first person to have played for J&K in 1959. That means around 65 years back, Roof Saab was the first person who represented J&K in Ranji Trophy. We were expecting, but unfortunately he was not well. Now we have with us Parvez Saab हैं, Ashraf Saab हैं, Imtiaz Saab, Javed Saab, Zoor Saab, हमारे top class cricketers, Samula, Iqbal Saab, Majid, all others. I will not be able to name them. Now we are here to share our feelings with you. It's a very, very great occasion for us that our team is not only Ranji Trophy team. In fact, I remember we had to wait for around 20 to 30 years for somebody to score a century in Ranji Trophy. It was Farooq Mirza, who was the first person. After having played Ranji Trophy for so many years, we recorded the first century way back some years, but 79. Thereafter, we see that every year, even this year, our youngsters managed to score double centuries, even junior groups. या आपने देखा होगा कि हमारे जो लड़के हैं इन्होंने ये ऐसे फ्लूक से नहीं हो गया कि हमने क्वालिफाई किया दिस क्वार्टर फाइनल. आप देख लीजिए हमारे लड़कों की परफॉर्मेंस क्या. इट हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस. और सबसे बड़ी बात है, जब भी कभी जो J&K की टीम जीतती थी, it would be taken as a surprise. It would be taken as a surprise. But that stage is over. That stage is over because our teams have started performing consistently. It does not mean that we have to be complacent. We have got to improve our game. We have got to improve our facilities. I am sure this is an occasion for me to talk. Okay, this is a place we owe everything to this place. I would be happier if this place and also a stadium at Jammu comes up with all good facilities. But I think 30-40 years back, this ground was better than what it is now. But I am sure things will move. हम अपने घर को अगर ठीक कर सकते हैं, तो naturally हमारी team भी आगे चलेगी. With all these words, I introduce on my right is Parvez Saab. अगर आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज. मंजूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका. कहने को तो बहुत कुछ है, मगर मंजूर साहब ने बाकी कम ही रखा बोलने को. तो
सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज अखबार वालों ने इंटरेस्ट दिखाया, वो यहाँ आए हैं। तो एक ज़माना ये भी था कि जब तक उनको कबाब न दें वो नहीं आते थे। तो अब ज़माना बदल गया है। अब जैसे हम गेम में इंटरेस्टेड हैं बाहर बैठे बैठे भी, और आप लोग भी गेम में इंटरेस्टेड हैं। जहाँ तक हमारी रणजी का सवाल है इस साल का, या बाकी हिस्ट्री का जो कहेंगे 59 से चलती आई है, एक तवील सफ़र है जो इस टीम ने किया है। इस टीम ने मालगाड़ियों में भी सफ़र किया है। इस टीम ने उस बाल्टी में भी पानी पिया है जिसे पिच पे पानी डालते थे। इस टीम ने तवी को भी बाथरूम बनाया है जम्मू में। और आज ये टीम अगर 5 स्टार होटल में रहती है, अच्छा ट्रैवल करती है और अच्छी परफॉर्मेंस देती है, तो हम सब बहुत खुश हैं। खुशी ज़्यादा ये होती कि जो मैंने पहले भी एक दफ़ा किसी डीडी पे कहा था कि मेरा अपना ख्याल था कि इस साल जे.एंड.के रणजी जीतेगा। मैं पूरा श्योर था कि जे.एंड.के रणजी जीतेगा इस साल, मगर बदकिस्मती गेम ऐसी है, इसमें पता नहीं चलता है कब क्या हो जाए, तो हम नहीं रणजी नहीं जीत सके। मगर दो चीज़ें मुझे इस टीम की और इस मैनेजमेंट की या सपोर्ट स्टाफ की बहुत अच्छी लगी इस साल। सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारी टीम ने जीत में भी डिग्निटी दिखाई और हार में भी ग्रेस दिखाई। जब जीते, जब हमारे उमर नज़ीर ने रोहित शर्मा का विकेट लिया, उसने हवा में मुक्के नहीं चलाए, नाचा नहीं, गालियां नहीं दी, ज़मीन को मुक्के नहीं मारे, बड़ी डिग्निटी से उसने एक बड़े प्लेयर को आउट किया था, बड़ी डिग्निटी से उसने बिहेव किया। जब हमने मैच जीता बॉम्बे के साथ, हमारी टीम ने भांगड़ा नहीं की, हवा में जंपे नहीं मारी, बड़ी डिग्निटी से उन्होंने जीता, बड़ी डिग्निटी से वो ग्राउंड से बाहर निकले। खुशी उनके मुंह पे नज़र आती थी, मगर जो ग्रेस और डिग्निटी उन्होंने दिखाई बहुत अच्छी थी। उसके बाद अब जब केरला के साथ एक हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत तकलीफ हुई सब प्लेयरों को, हम देखने वालों को हुई, जो वहाँ खेल रहे थे तो उनका क्या हाल होगा। उसके बाद भी उन्होंने अपनी डिग्निटी और ग्रेस मेंटेन की। ये दिखाती है कि जो हमारी टीम है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनका माइंडसेट कितना अच्छा है, वो गेम को किस तरीके से ले रहे हैं, वो गेम को किस तरीके से खेलना चाहते हैं। साथ में जो सपोर्ट स्टाफ हमारा इसके साथ होता है, टीम के साथ होता है, या आज अगर 14 प्लेयर खेलते हैं तो 20 बाहर होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट स्टाफ का भी अच्छा रोल रहा होगा, तभी टीम ने इतना अच्छा खेला। जो मैनेजमेंट थी, जैसे बॉम्बे के मैच से मैंने सुना कि टीम 10 दिन पहले बॉम्बे पहुंची थी, इसलिए पहुंची थी कि वहाँ के वेदर से, वहाँ जो ह्यूमिडिटी है उसमें बैठ के थोड़ा अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, फिर मैच खेलने उतरेगी। ये सारी चीज़ें देखिए, मैच का रिजल्ट जो होता है वो तो किसी के हक में जाएगा, मगर देखना आपने यह है कि जो खेलने की जर्नी है, कि हमारी टीम ने जो सफ़र किया वो कैसे किया। हमारी टीम ने बड़ी डिग्निटी से सफ़र किया। मैं उनको उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हार में भी अपनी ग्रेस और डिग्निटी नहीं खोई, आपने जीत के भी अपनी डिग्निटी नहीं खोई, आपने जीत के भी वो भांगड़े नहीं किए। इस चीज़ की मैं मुबारक अपनी टीम को देता हूँ। दूसरा ये मैं कहता हूँ कि जो हमारी मैनेजमेंट ने एक अच्छे तरीके से टीम को हैंडल किया। शिकायतें सबको होती हैं, यहाँ भी बहुत सारों को शिकायतें होंगी, मैनेजमेंट से, टीम से, सिलेक्शन से, बाकी सारी चीज़ें, ये कहानी होती। अल्टीमेटली 11 प्लेयरों ने खेलना है। आपके पास तो ऐसा तो नहीं है कि आपके पास सिर्फ 11 ही प्लेयर होंगे, खेलने वाले 33 प्लेयर होंगे जो 11 में खेल सकते हैं, मगर आपको टीम खिलानी है, आपको इंडिविजुअल्स नहीं खिलाने। बड़े बड़े नेशन जिनके पास इंडिविजुअल टैलेंट बहुत अच्छा है, एज ए टीम क्लिक क्यों नहीं करते? क्योंकि वो टीम नहीं खिलाते, वो इंडिविजुअल्स खिलाते। जैसे इनने हमारे टॉप प्लेयर्स, जैसे समद को मैच में नहीं खिलाया, टीम को नहीं लगा होगा खेलेगा, उसकी पोजीशन है, उनने नहीं खिलाया उसको। ये बोल्ड डिसीजंस लिए। ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी टीम ने और हमारी मैनेजमेंट और हमारी थिंकिंग ने एक वो कॉर्नर टर्न किया है। हम उस कॉर्नर के आगे निकल गए जिसके आगे हमको नज़र नहीं आता था। अब हमको नज़र आ रहा है कि आगे हमारा रास्ता क्या है। अब हमको ये दिख रहा है कि जो 1982-83 में 24 साल के बाद जे.एंड.के ने पहला मैच जीता, वो सफ़र वहाँ से शुरू होके आज कहाँ तक पहुँच गए। बॉम्बे से 2 मैच खेले, दोनों मैच बॉम्बे को हराए, और वो भी उनके अपने घर में जाके। एक बार हराने वाले में तो समीउल्लाह भी शायद थे, माजिद भी था, समीउल्लाह भी, माजिद भी थे। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ जो हमारी लोकल मैनेजमेंट है JKCA की, उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उनने ये मौका दिया हमको आपसे बात करने का, अपने ख्यालात ज़ाहिर करने का, जो हम वैसे सोशल मीडिया पे तो अपनी स्टीम निकालते ही रहते, मगर आपके सामने बात करने का मौका मिला,
इसके लिए मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ ही हम अशरफ साहब हैं जो हमारे सीनियर हैं, जिनके साथ मैंने यूनिवर्सिटी से खेलना स्टार्ट किया था। ये मेरे पहले कैप्टन थे इंटर यूनिवर्सिटी में भी। और ये अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अच्छा, ये कहते हैं मैं कुछ नहीं कहूँगा तो माजी।